वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ टू क्रिएट अ लूप, एंड लूप को क्रिएट करने के लिए हमने क्या यूज किया है, इफ एंड गो टू, इनका यूज करके हमने क्या क्रिएट किया है, लूप यूज किया। ठीक है, लेकिन ये चीज क्या है, दिस इज द सिंपल वे टू क्रिएट अ लूप by using the statements which you already know. Now what we are going to learn, we are going to learn the C looping statements, जो actual C के looping statements है, अब हम वो देखेंगे। if and go to का यूज क्यों किया था, just to make the things clear कि loop को आप कैसे execute करवा सकते हो। ठीक है, so the first statement of your C looping is while statement। ठीक है, एंड ये कौन से तरीके का लूप है, इट इज योर अनबाउंडेड लूप, अनबाउंडेड, और यू कैन से वेरिएबल, ओके, और यू कैन से इट इज अ सेंटिनल लूप। ठीक है, इसको कौन से तरीके के लूप कंसिडर किया जाता है, अनबाउंडेड, वेरिएबल और सेंटिनल। एंड व्हेन इट इज यूज्ड, इनका मतलब क्या है कि व्हेन यू डोंट नो द नंबर ऑफ रिपीटिशंस, जब आपको नंबर ऑफ रिपीटिशंस नहीं पता है तब आप क्या यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग व्हाइल स्टेटमेंट। ठीक है, एंड ये कौन से तरीके का वेरिएबल लूप है, दिस इज योर प्री टेस्ट लूप, प्री टेस्ट लूप, और you can say it is your entry controlled loop। entry control loop का मतलब क्या है कि लूपिंग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले ही कंडीशन चेक हो जाएगी। ठीक है, तो पहले ही लूपिंग स्टेटमेंट जो हम देखने वाले हैं वो कौन सा है, आपका while स्टेटमेंट। सो फर्स्ट थिंग विद इन द while स्टेटमेंट इज काउंटर इनिशियलाइजेशन, यानी आपको अपने आप काउंटर को डिक्लेयर करना है और काउंटर को इनिशियलाइज करना है, क्योंकि कोई भी लूप आप बनाओगे तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, काउंटर इनिशियलाइजेशन। देन कम्स योर while स्टेटमेंट। ओके, while के साथ हमें क्या लिखना है, वी हैव टू स्पेसिफाई द कंडीशन, and this condition is nothing but it is your stopping condition। when your loop is going to stop, the repetition is specified in this condition, and this condition checks whether your counter variable has reached the final value or not। ये चीज कहां पर चेक होती है, इस कंडीशन में चेक होती है। and if this condition is true, then and then only the statements within the loop block will be executed। okay, and this is the block, loop block कहाँ से start हो रहा है, या तो body of the loop begins with your curly braces, and within this curly braces you have to specify the statements which are to be repeated, and then जितने statements आपको लिखने हैं उतने statements आप लिखो, and after that what you have to do is don't forget to increment or decrement your counter, and then you have to just close your while loop। तो while loop के साथ curly braces क्या specify करता है, this curly braces specifies the body of loop, or you can say the block of statements which are to be repeated are specified within the curly braces। so don't forget to mention the curly braces with the while statement। and counter initialization कहाँ पर होता है, it is outside your while statement, but counter increment or counter decrement is done within the body of the loop। okay, there is no terminating semicolon over here। why it is not there, because आपका while statement कहाँ से start होता है, curly braces से start होता है and closing curly braces पे खत्म होता है, इसीलिए यहाँ पर semicolon नहीं है। अगर आप यहाँ पर semicolon दे दोगे तो उसका मतलब क्या है, this while statement will never be executed, ये कोई भी statement execute नहीं होंगे। ठीक है, so let us see an example। just I want to print my name how many times, 10 times। okay, so what main function के अंदर I have initialized the counter, I have what that is initialization of the counter, then condition checking, हमें 10 times नाम print करना है
तो हमें क्या चेक करना है कि i की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए, 10 तक जानी चाहिए। मीन्स व्हाट, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टिल व्हाट 10 होना चाहिए। तो ये चीज हम कैसे कंडीशन के अंदर लिख सकते हैं, वी कैन राइट i मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 10। इक्वल टू 10 क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे 10 तक जाना ही है। क्यों, क्योंकि लूपिंग कहाँ से मैंने स्टार्ट करी है, 1 से स्टार्ट करी है। सो आई हैव टू राइट i लेस देन इक्वल्स टू 10। ओके, द थिंग विच वी कैन स्पेसिफाई इन द फ्लो चार्ट इज दिस वे। व्हाट इज दिस, i लेस देन 10 चेक कर लिया, ठीक है। अगर है दैट मीन्स ट्रू है तो क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, कितनी बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, नेम डिस्प्ले करना चाहिए एंड काउंटर को इंक्रीमेंट करना चाहिए। और ये चीज कितनी बार होनी चाहिए, 10 टाइम्स होनी चाहिए। सो हुई, 10 टाइम हुई, ठीक है। हुई का मतलब क्या है, एक बार डिस्प्ले किया, डिस्प्ले के बाद इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करने के बाद आपका कंट्रोल वापस से किधर जाने वाला है, व्हाइल स्टेटमेंट पर ही जाने वाला है। क्यों व्हाइल स्टेटमेंट पे जाने वाला है, यहाँ पर गो टू हमें नहीं देना है। व्हाइल स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स द execution, ठीक है। तो as soon as this increment is done, this control will go back to your while statement. Again it will check the value of I, it is less than equals to 10. If it is, once again the statement will be executed, increment will be done, okay, back again वो जाएगा वापस से। और ये चीज कितनी बार होने वाली है, this thing will be done how many times, 10 times, okay। तो यही चीज हर बार होने वाली है, हाउ मेनी टाइम्स, इट इज गोइंग टू बी डन 10 टाइम्स, ठीक है। जब तक ये कंडीशन ट्रू है, यानी i की वैल्यू कितनी हो रही है, 10 तक पहुंच रही है, तब तक ये चीजें होती रहेंगी। विच टू थिंग्स विल बी डन, द नेम विल बी डिस्प्लेड एंड द इंक्रीमेंट ऑफ द काउंटर विल बी डन, एंड दिस विल बी डन हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स। एंड देन व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, इट विल कम आउट ऑफ द लूप। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कहाँ आएगा, लूप के बाहर आएगा। एंड लूप के बाहर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ एंड। एंड लूप खत्म कैसे हो रही है, कब हो रही है खत्म, जब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। और लूप कैसे खत्म हो रही है, ये करली ब्रेसेस यहाँ पर क्लोज हो रहा है, यानी ये लूप फिनिश हो गई। और लूप के बाद का स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट एंड है, तो इट विल प्रिंट एंड। I hope the while statement is clear to you. Thank you.